Today we will see the previous year questions of year 2024 part first. Okay, अभी आपका 4 जुलाई को पेपर है, so there are only 30 to 35 days. Okay, so without wasting time हम start करते हैं. Cold air at 10 degrees Celsius, sorry, is forced to flow over a flat plate maintained at 40 degrees Celsius. The mean heat transfer coefficient is 30 watt per meter square degree Celsius. What will be the, मतलब यहाँ पे H की वैल्यू दी है, T in दिया है, T out दिया है, सरफेस दिया. Okay, what will be the heat flow rate? Q पूछा हमें. Okay, and area भी दिया है. So it is the convection heat transfer. So here Newton's law of cooling applied by Newton's law of cooling. The formula is HA T out minus T in. Okay, so here directly हमें दिया है वैल्यू 30 30 into A कितना है 2 into 40 minus 10. Just calculate it. 30 30 is a 900, 900 to the 800 watt. So here what 8, okay, kilowatt में, so divided by 1000, so 1.8 kilowatt. Okay, so क्या है ऑप्शन? यस बी. ओके, ये भी सिंपल था एकदम. ये फॉर्मूला आपको सबको याद ही होगा. ओके, फोरियर्स लॉ हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, फिक्स लॉ हो गया, ये सब फॉर्मूला आप करके रखिए. ओके, welcome back to the AgriAddict YouTube channel. I am Shreyas Praveen Dingore, your mentor for subject agriculture engineering. Today we will see the previous year questions of year 2024 part first. Okay, अभी तक हमने 2020 से 2023 तक सब दो पार्ट में कवर किए. ओके, सो अभी आपका 4 जुलाई को पेपर है, सो देयर आर ओनली 30 to 35 days. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं. So yes, this is my short introduction. Currently I am pursuing PhD in Processing and Food Engineering Division in ICAR, Indian Agriculture Research Institute, that is IARI, New Delhi. Also, I secured All India rank 6 in ICAR JRF SRF examination, All India rank 11 in ICAR PG examination, and overall rank 4 in Maharashtra CET examination. Okay, so let's start today's session. So first question. Consider the following statistical measure. Okay, which of the given below are measure of central tendency? So this is question from statistics. Okay, so here 1 minute. Okay, what is meant by measure of central tendency? So measure of central tendency indicates or describe the central value, or we can say mean, middle value. Okay, so it describe mean value, sorry, or we can say central value. And there is another term. This is measure of central tendency in second one, measure of dispersion. So measure of dispersion, अभी dispersion नाम से ही पता चलेगा. So it describe the how the observation or values scattered or vary from the central value. Okay, so it describe how values, or we can say observations, scattered or vary from mean or central value. So here there are like three measures of central of tendency, that is mean, median and mode. So one by one देखते हैं. Arithmetic mean, yes. Again there are types of mean: arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Geometric mean में हम रेशियो के साथ लेते हैं, और harmonic mean it is the reciprocal of arithmetic mean. Median, yes, median is nothing but the middlemost value. Okay, this is average. Standard deviation and quartile deviation is the, okay, and Q. These are the measure of measure of dispersion. Yes, variance, yes, variance also known as measure of dispersion. Okay, so here only A and B option is correct. Yes. Okay, simply मतलब simple question था. Next one. Consider the following probability distribution. Okay, which of the following are continuous probability distribution?
continuous. Again, there are two types, continuous and discrete. Okay, so in continuous, 1 minute. Yes, in continuous we can select random variable or value. ओके मतलब सपोज मान लो देयर इज टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन. ओके, टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन दैट इज 37.2 डिग्री सेल्सियस, 38.1, 50, 28, 31.2 एंड सो ऑन. सो हियर देखो यहाँ पे पॉइंट में तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यूअस में. बट देयर इज सेकेंड टाइप, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें ओनली होल नंबर. ओके, so here like we can say a number of crops. okay, so अभी वन बाय वन देखते हैं हम. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम मतलब कंटिन्यूअसली मतलब रैंडम कौन सा भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं. बट बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज डिस्क्रीट वन. स्काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, यस, इन दोनों भी में हम दिस इज आर कंटिन्यूअस हम सिलेक्ट कर सकते हो. सो हियर ए डी एंड ई आर करेक्ट ऑप्शन. ये तो नहीं होगा, बी सी नहीं है, ये भी नहीं है, ए डी है. यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, दिस इज अगेन सिंपल वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ओके, दो वेक्टर दिए उसके बीच में दोनों के बीच में एंगल निकालना है. सो यहाँ पे अभी देर आर टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज लाइक हम ट्रेडिशनल लाइक पहले ट्रिक से सॉल्व करते हैं. ओके, सो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे ए दिया है 2i माइनस जे प्लस 2k और बी में कैसे लिखता हो देखो 6i. यहाँ पे देखो 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम. 3 कॉमन आया, सो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 and again 2k. so here this is the b is the multiple of a. okay, so vector b is a scalar multiple of vector a. okay, so they are parallel and in same direction because sign also there is same sign plus plus. okay, same direction. so दोनों same direction में, so दोनों के बीच में एंगल ही नहीं होगा. so एंगल इज 0 डिग्री. 0 डिग्री का है. यस, पहले ऑप्शन है. सो ओके, नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखते हैं हम. so there is one formula cos theta is equal to dot product of vector upon their dot product of magnitude. okay, so firstly हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. सिंपली 2 इंटू 6 कितना होता है 12. ओके, -1 -3 +3 प्लस 2 इंटू प्लस 6 अगेन 12. सो 12 + 12 24 + 3 27. ये आ गया. ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब उनका स्क्वायर लेने का और एडिशन करके स्क्वायर रूट निकालने का. सो 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो इट विल बिकम 4 + 1 + 4 √9, so 3. again b 6 square plus -3 square plus 6 square 36 plus 9 plus 36. so 36 plus 36 72 plus 9 81. so it is 9 is the square root of 81. okay, so now सब वैल्यू आ गए हमारे पास. cos theta is equal to 27 upon 3 into 9. so 27 upon 27 is equal to 1. 1 ही आता है ना. yes, so theta cos inverse of 1 is equal to 0 डिग्री. आ गया फिर से वही. ओके, so next क्वेश्चन देखते हैं अभी. टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स शोज. ओके, सो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा मतलब दोनों इंडिपेंडेंट होके दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है उनका इंटरेक्शन क्या होगा, दोनों अलग अलग है तो
कुछ बनेगा ही नहीं, बात तो इंटरेक्शन ही नहीं होगा, सो इसलिए कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन जरूरी है. सो देयर इज फॉर्मूला P ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस दोनों के बीच का इंटरेक्शन, यही जीरो एटम हमारी. सो बचा कितना, ओनली दिस, सो कहा है ये, यस फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आए अभी तक, देखो मतलब 8 मार्क्स. द मीडियन अगेन स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन, सो 8 + 8 16 मार्क्स. फर्स्ट 5 क्वेश्चन में 16 मार्क्स का सिर्फ वही बेसिक पूछा है. सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड मीडियन, अरेंज इन ascending order. Okay, so 9, 10, 11, 12, 13. So here the number of observation are 1, 2, 3, 4, 5. Odd number of observation. Okay, so there is direct formula n plus 1 upon 2. So 5 plus upon 2 term median, or we can say middle most value. Okay, सो थर्ड टर्म कौन सी है, 1, 2, 3, 11. सो 11 का यस डी ऑप्शन. ओके, सिंपल था. और इवन होगा तो सिंपली n/2 प्लस n/2 प्लस 1 दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड एवरेज निकालने का, और जो टर्म आएगी दैट टर्म इज नोन देन नोट सॉरी दैट टर्म विल बी द मीडियन. ओके, सो again next question, which of the following numerical method are used for the finding roots of equation? Okay, so bisection method yes, Newton-Raphson method yes, Gaussian elimination no. अभी मैं एक वन बाय वन करके बताता हूँ ये मेथड्स क्या है, उनके फॉर्मूले क्या है. yes, this is also used. so हम वन देखते हैं बाइसेक्शन मेथड. सो बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, देयर इज वन कंडीशन, इफ f ऑफ a एंड f ऑफ b दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होगा तो जो मिडल वैल्यू होगी वो a प्लस बी बाई 2 होगी. सो इट इज वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट रूट. देन न्यूटन रैप्सन मेथड. सो न्यूटन रैप्सन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमें रूट निकालना होता है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 से डिनोट होता है, एंड इसका फॉर्मूला है xn माइनस एफ ऑफ 1 मिनट, हाँ, एफ ऑफ xn अपॉन उसका डेरिवेटिव. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके, एंड यस अभी देखो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है वो क्यों यूज कर रहे हैं, टू सॉल्व सिस्टम और linear equation. Okay, so this is the main purpose of Gaussian elimination method. And regular false method, it is also known as false position method. And here also formula is, अभी देखो a पहले लिखने का, फिर से f of b माइनस, ओके, b अंदर लेने का f of a, मतलब a ही बाहर रखने का है दोनों जगह, और डिवाइडेड बाय फिर से f of b माइनस f of a करने का. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके, फाइंड द रूट. सो हियर ओनली a b d आर यूज्ड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, सो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक मिनट. यस, so again this is a question from engineering mathematics. The value of d derivative of log cos x. Okay, so हमें derivative of log x सबको पता है, this is the fundamental formula 1 upon x. अभी हम चेन रूल लगाएंगे. so d by dx of log of cos x is equal to 1 upon cos x derivative of cos x. okay, so 1 upon cos x derivative of cos x क्या आता है, माइनस साइन एक्स. सो माइनस टेन एक्स, साइन अपॉन कॉस टेन, माइनस टेन का यस बी ऑप्शन. विद इन 2 to 3 सेकेंड ये आंसर आ गया हमारा. ओके, सो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन पूछा. अगेन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन इसके हो गए, 3 स्टैटिस्टिक्स के. ओके, सो हियर सिंपली देयर इज फॉर्मूला.
So xn is equal to xn इधर dx plus 1 upon n plus 1. So here x raised to 4 upon 4 and limits क्या दिए 3 1. So just put limits 3 3 is 9 27 27 3 is 81. So denominator same is just subtract it. Okay 20 आया हमारा आंसर. Yes. Okay ये भी एकदम फास्ट किया हमने सॉल्व. Okay next question. Which of the following language does computer understand? This is question from computer application. Okay. So there are 15 to 20 questions are directly asked from miscellaneous topics. Okay. Like electrical engineering, computer, statistics, probability, mathematics. Okay. Machine language. Yes. Machine language like such as binary. Okay. Then C language. This is high level programming language. So this is not used. Sorry, language का spelling गलत हो मतलब सही था. Okay, so this is not used. Assembly language. Yes, assembly language needs some assembler. Okay, to perform. So this is again wrong. Basic language is the same reason as C language. So only A option is correct. Machine language. Okay, it directly understand by computer. So next question. Voltage of three-phase motor पूछा है. Is generally kept. So in India, most of appliances are run or most of industry prefer 415 voltage. Okay, for three-phase motor. Okay. So directly this is standardized value 415 volt. Next, the linear variable differential transform LVDT. इसका फुल फॉर्म याद रखना. ओके, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. लिनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर is an accurate and reliable transducer for the measurement of. So this is used mainly for linear displacement. Okay, linear displacement. Again, this is basic question. Next, in India, the primary transmission of electric power is carried out through. अभी देखो इसमें मतलब हम देखते हैं कि घर में भी 3 फेज हम करंट आता है. ओके, सो in India 3 phase and 3 wire are used. Okay, next one. Okay, so before going to the next question, we prepared the special mock test bundle for the agriculture engineering subject for the ICAR PG examination. So it contains around 30 plus sets of mock test, which include full length mock test, subject wise mock test, and also topic wise mock test as per the syllabus. And it covers whole मतलब पूरा जो जो important topics है वो cover किए. Also you can attempt each mock test 3 times to avoid silly mistake and increase the efficiency and reduce time. Also each question is provided with solution. वो भी important and previous year question paper भी है उसमें जो तो आप practice कर सकते हो. And the question are prepared as per the examination pattern like assertion and reason, statement type, numerical, match the following. उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एमसीक्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो this is very fruitful. Please visit the website of AgriAddict and purchase the mock test bundle. Okay, only like 1 month is remaining for examination, so please purchase it. And in the end, revision and practice is most important क्योंकि क्वेश्चन पेपर पूरा मतलब सब एक मिक्स आता है तो जम्बलिंग होती है. ओके, सो इट इज़ वेरी फ्रूटफुल. सो आपकी अच्छी रैंक आने में ये जरूर हेल्प करेगा. आपकी प्रैक्टिस होगी. ओके, सो अच्छे से प्रिपरेशन करना. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिंक्रोनस स्पीड of an AC induction motor depends on. Okay, so on this topic every year one question is asked. Synchronous. Okay, 2022, 2023, 2024. ओके, तीनों में अभी तक आया है क्वेश्चन. सो व्हाट इज सिंक्रोन, इसका फॉर्मूला क्या है सिंक्रोनस स्पीड का? सो एकदम सिंपल फॉर्मूला है 120 into f upon p. So here f denotes frequency and p denotes number of poles, that is constant value. Okay, and this is synchronous speed. So इन्होंने पूछा क्या डिपेंड्स ऑन. फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी. यस, फ्रीक्वेंसी पे है डिपेंड. नंबर ऑफ पोल्स मैंने कहा यस. करंट और वोल्टेज नहीं आया है.
रेजिस्टेंस भी नहीं. सो हियर ओनली ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट. यस, ऑप्शन ए. सिंपल एकदम, ये फॉर्मूला याद रखना सिर्फ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज कॉमनली यूज्ड इन द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल. अभी हमें प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सा मोटर? इंडक्शन मोटर. इट इज वेरी हाई स्पीड, सो दिस इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्पीड. ओके, ब्रशलेस डीसी मोटर. यस, इट इज द एक्सेलेंट एंड एफिशिएंट डीसी मोटर, एंड इसमें हम विद द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, एक्सेलेंट एंड कंट्रोल स्पीड बाय इलेक्ट्रॉनिक controller. Okay, so here again universal motor not feasible. Yes, synchronous motor में constant speed रहता है, but हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, but unable to control precise speed. Okay, so here option B is correct. Brushless DC motor, direct current motor. Okay, so next question. ओके, assertion and reason टाइप क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए. द कॉपर लॉसेस ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर हाई कंपेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर. यस, अभी कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है पहले वो देखते हैं हम. हियर ओके, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लॉसेस इन स्टेटर में टू द रोटर वाइंडिंग. अभी देखो 3 फेज में क्या होता है, 3 वाइंडिंग्स होती है, सो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो लोड कम, जो करंट की डेंसिटी होती है, लोड होती है, वो कम होती है. बट इन सिंगल फेज में क्या होता है, ओनली सिंगल वाइंडिंग. ओके, मोर करंट, लोड और डेंसिटी. ओके, सो they are high compared to 3 phase. Yes, correct. In 3 phase induction motor the load current is distributed among multiple winding. Yes, मैंने अभी बताया, so it distribute among multiple winding. ये भी सही है रीजन. ओके, दोनों का. so here option A is correct. both A and R correct and reason correctly explain the assertion. Okay, then आप वही देखो स्टार्ट हो गए assertion रीजन स्टेटमेंट. एक क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन. अभी इसमें देखो जो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज होती है. स्पेसिफिक हीट कैन वेरी स्ट्रांगली विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर. यस, ये भी करेक्ट है. सो हियर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. द इफिशियंसी ऑफ कैन नॉट हीट इंजन, ये टॉपिक है पीएफई का, फ्रॉम रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. मतलब सब्जेक्ट पीएफई एंड टॉपिक रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. between two reservoir, that is temperature TH, that is hot source, and temperature TC, that is cold sink. so इसका भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला है 1 माइनस TC माइनस बाय TH, उसको हम TH माइनस TC अपॉन TH लिखते हैं. ओके, सिंपल वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, cold air at 10 degree Celsius, sorry, is forced to flow over a flat plate maintained at 40 degree Celsius. The mean heat transfer coefficient is 30 watt per meter square degree Celsius. What will be the, मतलब यहाँ पे H की वैल्यू दी है, T in दिया है, T out दिया है, सरफेस दिया है. ओके, व्हाट विल बी द हीट फ्लो रेट, Q पूछा हमें. ओके, एंड एरिया भी दिया है. सो इट इज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर. सो हियर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. The formula is HA T out minus T in. Okay, so here directly हमें दिया है वैल्यू 30 into A कितना है 2 into 40 minus 10. Just calculate it. 30 is a 900 to the 800 watt. So here what 8, okay, kilowatt में, so divided by 1000. So 1.8 किलोवाट. ओके, सो कहा है ऑप्शन? यस, बी. ओके, ये भी सिंपल था एकदम. ये फॉर्मूला आपको सबको याद ही होगा.
ओके, फोरियर्स लॉ हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, फिक्स लॉ हो गया, ये सब फॉर्मूला आप करके रखिए। ओके, सो नेक्स्ट वन, अ काउंटर फ्लो शेल एंड ट्यूब हीट शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर काउंटर फ्लो है। ओके, मतलब एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इज यूज टू कूल वाटर फ्रॉम टीएच इन 2020। ओके, सो यहाँ पे टीएच पहले इन हुआ है, इसका टेम्परेचर है 22 एंड यहाँ पे आउट हुआ है तो टीएच आउट 6 डिग्री सेल्सियस एंड यूजिंग ब्राइन, ब्राइन इज द लाइक कोल्ड सॉल्यूशन होता है, सो हियर टीसी इन -2 degree Celsius and having living at 3 degree Celsius. The logarithmic mean temperature या LMTD भी कहते हैं इसको हम, that is delta Tm for such system. So here delta Tm for counter flow heat exchanger is nothing but delta T1, okay, minus delta T2 upon natural log of delta T1 upon delta T2. But here what is delta T1 and delta T2? So delta T1 is nothing but TH इन हुआ है माइनस TC आउट, क्योंकि काउंटर फ्लो है। ओके, सो TC इन माइनस TH इन माइनस TC आउट। ओके, सो हियर TC इन कितना है हमें हमारा 22 माइनस 3 19। ओके, ये 19 हो गया, सो हम इधर लिखते हैं डेल्टा TM इज इक्वल टू 19, पहली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू निकलते है डेल्टा T2 की, इट इज अभी देखो TH आउट माइनस TC इन, सो TH आउट कितना है हमारा 6 से, माइनस TC इन कितना है -2 है, सो माइनस माइनस +2, 6 + 2 इट बिकम्स 8। सो अभी 8 पुट करते हैं अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 19 अपॉन 8। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही सॉल्व करना है हमें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन क्या दिए वो देखना, नहीं तो आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। ओके, सो डायरेक्टली आंसर हमारा आ गया है। ओके, सो हियर 19.8। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये याद रखना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the following. Okay, fluid type and characteristics. So this is question again from PFE and topic rheology. Okay, so first one is ideal fluid. So ideal fluid सबको मालूम है, ये तो exist नहीं करता, so इसकी condition क्या होगी? First one is non viscous, so incompressible भी होगा। Okay, so here क्या दिया है? Incompressible, yes, incompressible and no viscosity. So here पहला ऑप्शन है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन किस में है का, ये दोनों ऑप्शन तो गए। न्यूटन एंड फ्लूइड, उसके नाम में फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? अभी द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और द शेयर स्ट्रेस इज वेरीज लिनियरली विद द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। यहाँ ऐसा कुछ दिया है कि हम देखते हैं, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, यस दिया है। सो ए का सेकेंड ऑप्शन हो गया, सॉरी बी का सेकेंड ऑप्शन हो गया, बी का सेकेंड ऑप्शन इसमें ये, सो हमारा ऑप्शन यही हो गया। सिंपल, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अभी, अगर इसमें सेम होता तो आगे जाते हम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रियल फ्लूइड। अभी रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं, पर रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी और कॉम्प्रेसिबल भी होगा, तो इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो अ फ्लूइड विच पोजेस विस्कोसिटी, सो इसका फोर्थ होगा। मैच हो रहा है, हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry next option, non-Newton fluid opposite to Newtonian does not follow Newton's law of viscosity. Shear stress is not proportional to rate of shear strain. Okay, so ये D का है। okay, then next one, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, उसका एक ही बचता है ऑप्शन, शेयर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू। सो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं वो प्लास्टिक इलास्टिक रहते हैं, मतलब उसपे कोई इफेक्ट नहीं होता, पर एट सम वेट, मतलब एक पॉइंट के बाद आप ज्यादा वेट करेंगे तो वो टूट जाएगा। ओके, सो यस,
इसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एरर ऑफ 1% इन मेजरिंग हेड विल बी प्रोड्यूस। अभी देखो ऑप्शन क्या क्या है। सेम एरर इन डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वेयर एंड ट्रायंगुलर वेयर। सो दोनों सभी ऑप्शन में इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है। सो पहले हम फॉर्मूला दिखते हैं। Q is equal to for rectangular wear. Okay, 1 minute. So first for rectangular wear, Q is nothing but or Q is proportional to L raised to 3/2. Okay, and for triangular wear, Q is proportional to H raised to 5/2. अभी देखो यहाँ पे हमने सपोज 1% एरर है। ओके, इससे मल्टीप्लाई किया Q निकालने के लिए, इससे मल्टीप्लाई किया तो ओनली 3/2 के हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में चेंज होगा। बट हियर h⁵ से मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा वेरिएशन आएगा। सो हियर मोर एरर इन डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर वेयर कंपेयर टू रेक्टेंगुलर। ओके, ट्रायंगुलर वेयर में रेक्टेंगुलर वेयर से ज्यादा डिस्चार्ज एरर आएगा। सॉरी, अरे यार। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ये रीजन है मेन, this factor. Next one, a rectangular channel will be the most economical when the width is same as the depth of flow. No, इसका एक कंडीशन है, it is not same, it should be half होनी चाहिए। ओके, then in case of compressible flow density of the fluid remains constant. No, compressible है मतलब compress pressure चेंज होगा, उसके हिसाब से डेंसिटी भी चेंज होगी। सो हियर बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ओके, so option B is correct. A ball and socket forms a turning pair. No. Rolling pair, yes. So it allows rotational motion in all direction or corner of sphere. So it forms rolling pair. Okay, so simple one again. Next one, a couple consist of. अभी देखो कपल कैसे बनते हैं। पहले तो झगड़ा होता है, लाइक दोनों मतलब दोनों का बनता है, पर दोनों में कुछ कुछ पॉइंट डिफरेंट होते हैं। सो टू लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, नो। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, नो। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यस, with same magnitude. This is the correct option of couple consist of. So this is related to machine. Okay, ये ध्यान में रखना। So yes, C option is correct. Okay, next question. The coefficient of uniformity in soil gradation is the ratio of. This is question from irrigation and drainage engineering. So इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, D62 by D10 से हम यूनिफॉर्मिटी निकालते हैं। ओके, ये भी सिंपल है। So next one, Atterberg limit of a soil represent which of the following property at critical stage of soil behavior? So it represent a water content. और क्रिटिकल स्टेजेस कौन कौन सी है, सच एज लिक्विड लिमिट, लिक्विड प्लास्टिक, एंड लास्ट वन श्रिंकेज। और अभी ये कंसेप्ट में जो मैराथन होने वाली है उसमें इन डिटेल विद ग्राफ आपको बताऊंगा। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन इट रिप्रेजेंट वाटर कंटेंट। सो वाटर कंटेंट मतलब ही सॉइल मॉइस्चर। ओके, मॉइस्चर कंटेंट। सो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, फटीग फेलियर ऑकर्स। फटीग मतलब हम देखते हैं कि हमें थकान सी महसूस होती है, हम बहुत देर से एक ही काम कर रहे हैं। ओके, सो सडन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, नो। ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, नो। रिपीटेड एप्लीकेशन, यस। मैंने बताया कि एक ही देर से बहुत मतलब एक ही काम कर रहे हैं, लाइक इन साइक्लिक पैटर्न। ओके, इन साइक्लिक प्रोसेस और रिपीटेड। सो कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, नो, इसको हम क्रिप कहते हैं। सो हियर repeated application of stress. Okay, this is the correct option of fatigue failure. Then the compaction of soil reduces. So हम क्या करते हैं, soil को compact करते हैं। ओके, उसकी वजह से क्या होता है,
वॉइड्स कम होते हैं, ओके, सो बेसिकली वॉइड रेशो कम होगा, ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. The resultant of two forces P and Q such that P is greater than Q. Okay, P is greater than QA. So acting along the same straight line, मतलब एक ही लाइन में है, but in opposite direction. So obviously दोनों के बीच में subtraction होगा. So but P बड़ा है, so P minus Q होगा, क्योंकि वो निगेटिव में जाएगा फिर. So और वो हमने क्या बताया, सेम लाइन लिया है. Okay. So here P minus Q is correct option. Option B. A cantilever beam is subjected to uniformity distributed load. At what point along the beam's length does the maximum deflection occur? तो अभी देखो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इन दी एंड होगा, ओके, एक मिनट, ओके, यहाँ पे. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन dropping of seed, yes, this is question from subject FMP and topic sowing, okay. In furrow in continuous flow is known as. अभी आप पूछ रहे हैं कि सर आप टॉपिक सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं, सो हमने आप एग्री एडिट वेबसाइट पे जाके आप एक पीडीएफ देख सकते हैं मेड इजी करके. उसमें हमने फ्रॉम ईयर 2020 से 2025 तक जो जो आईसीआरपीजी के एग्जामिनेशन हुए उस पेपर को एनालाइज किया है, एंड अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट लाइक फार्म मशीनरी, प्रोसेसिंग, एसडब्ल्यूसी, आईडी एंड फार्म स्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, उसको हमने एनालाइज करके नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल कितने पूछे जा रहे हैं इस डिपार्टमेंट से वो निकाला है, ओके. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, ओके. सो और कौन सी बुक रेफर करने चाहिए वो भी हमने बताया, ओके. सो प्लीज आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, बहुत सारा उधर आपको जो यूजफुल कंटेंट है वो देखने के लिए मिलेगा, ओके. सो ये क्वेश्चन देखते हैं. सो ड्रॉपिंग ऑफ सीड इन फरो इन कंटिन्यूअस फ्लो. अभी देखो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन डिबलिंग एंड ड्रिलिंग. सो डिबलिंग इज नथिंग बट द dropping of seed in hole and cover with them soil, okay. Dropping of seed in hole and covering them with soil. So ये तो नहीं होगा. Yes, drilling is the dropping of seed in continuous manner. Hill dropping में भी हम like सीड ड्रॉप करते, 1 minute, yes, dropping of seeds in proper row with spacing in between hill, okay. And broadcasting is scattering or metering seeds over the field. जो अभी ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, हम हैंड से भी वो ऐसे सीड थ्रो करते हैं, या फिर एक मशीन होता है वो ऐसे हम आगे लगाते हैं और लाइक वो ऐसे राउंड करके ऐसे सीड्स थ्रो करता है, ओके, लाइक स्कैटर करता है. सो हियर ड्रिलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, which of the following is true for knife registration? Midpoint of the stroke is center between the adjacent, yes, and okay, this is related to mower. पहले मैं ये mower is the harvesting tool used to harvest or cut forage crops, okay, used to cut forage crops. And ripper is used to harvest which, that is cereal crop. So अभी देखो दो पार्ट में लेते हैं. Yes, this is proper registration and this is no. So जो सेंटर ऑफ लाइक नाइफ है वो सेंटर ऑफ गार्ड के बीच में रुकना चाहिए. मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रोक इज सेंटर बिटवीन द एडजेसेंट गार्ड. दिस इज द करेक्ट proper registration, okay, of cutter mover. So option A is correct. Next,
Which of the following results in decreased seat damage during the mechanical threshing? Decrease concave clearance. अभी देखो कॉन्केव क्लियरेंस डिक्रीज किया तो दोनों के लाइक दिस इज सिलेंडर सॉरी हाँ एंड ओके so this distance is known as concave clearance. Okay, so it may be damage the like grains. Okay, इधर क्या दिया हमें increase the seed damage. Okay, so this is correct one. Decrease seed moisture. Yes, अभी seed moisture हमने optimum level से कम कर दिया तो ऑब्वियसली वो ड्राई हो जाएगा और वो इजीली ब्रेकेज होगा. सो इट इज आल्सो करेक्ट. रिड्यूस थ्रेशिंग सिलेंडर डायमीटर. डायमीटर रीडिंग रिड्यूस करने से कुछ इफेक्ट नहीं होगा. इंक्रीज फीड रेट. इंक्रीज फीड रेट से भी लाइक मतलब क्लॉगिंग हो सकती है, उससे डैमेज हो सकता है, बट इज आल्सो नॉट लाइक फिजिबल. ओके, सो ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन according to me. Okay, this is also like depends on situation. Okay, like chances of depends on situation. पर यहाँ पे अभी देखो ए बी डी ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है. ओके, read vapor pressure test is there are different types of test. नेब्रास्का टेस्ट, अगेन विस्कोसिटी टेस्ट, ऑयल टेस्ट. सो ये भी हम मैराथन सेशन में कवर कर लेंगे कौन सी टेस्ट कौन से पैरामीटर चेक करने के लिए यूज होती है. सो हियर दिस इज यूज फॉर वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल. ओके, वोलेटिलिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ फ्यूल टू वेपराइज ओके इन एटमॉस्फेयर. which of the following is true for self ignition temperature of CI compression ignition engine and SI? That is SI क्या spark ignition engine. First, a good CI engine fuel requires high self ignition temperature. No. अभी देखो compression ignition temperature में only air intake होता है, so obviously it is all depend on compression, so it needs very low temperature. Okay, during stroke. So this is wrong. A good SI engine requires low. अभी देखो spark ignition में भी both फ्यूल लिक्विड एंड एयर दोनों का मिक्सचर आता है एंड स्पार्क इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग होता है. ये होता है. सो इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर हमें ऑलरेडी चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. अभी अ गुड सीआई इंजन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर. यस, इसके उल्टा है, सो राइट है. अ गुड एसआई इंजन रिक्वायर्स हाई. यस, मतलब ये जस्ट उसके वाइस वर्सा ऑपोजिट डी है. सो सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट मतलब आपको एक तो भी पता होगा तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इससे. ओके, सो बेसिक कंसेप्ट याद होने चाहिए. पेनेस्की मार्टन्स क्लोजर टेस्टर. यस, अभी देखो दो क्वेश्चन टेस्टिंग के ऊपर आया है. इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल. मतलब फ्यूल सिस्टम पे ही दो क्वेश्चन आए हैं. ओके, एफएमपी एंड फ्यूल सिस्टम. सो देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर, power transmission, fuel system, ignition system, cooling system, hydraulic system. Okay, so one by one हम वो मैराथन में कवर करेंगे. So here Penske Martin close tester is used to measure flash point. So flash point is where the fuel starts to flash, like वो flash करता है after 5 seconds. Okay, so this is ash content के लिए हम muffle furnace use कर सकते हैं. Viscosity, yes, for viscosity measurement there is special apparatus Seabolt viscometer. ओके, ये ध्यान में रखना. दिस इज मफल फर्नेस और अनदर apparatus. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The material used frequently if different for the inlet and exhaust valve. Okay, again this is question from farm machinery and power engineering and topic is engine. So inlet and exhaust valve जो होते हैं यहाँ पे इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल होते हैं. ओके, सो इनलेट वॉल का और एग्जॉस्ट वॉल का मटेरियल अलग क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग intake of at inlet wall there is intake of fresh air, that is cool air. Okay, but in the exhaust wall they carries high temperature exhaust gases. Okay, so उसको melting point ज़्यादा होना चाहिए as compared to inlet wall. So this is correct one. Then inlet wall run cooler than the exhaust wall, मैंने अभी बताया. Okay, so both reason भी right है. So option A is correct. Both A and R true and reason correctly explain assertion. Next question.
Okay, so before again आपने मिस किया होगा तो this year we come with the special mock test bundle for the ICRPG examination and for subject agriculture engineering. बहुत कम कंटेंट है इसका, so it covers 30 plus mock test which include full length mock test again subject wise topic wise as per the syllabus of examination, and also question pattern like accession and reason questions, statement type, then match the following, numerical, multiple selection type, choose the correct one, MCQ. Okay, so it covers all. Again, you can attempt 3 times same mock test, so it will be very helpful to reduce the silly mistake or practicing. Okay, also there are previous year questions paper for practice. हम तो solution ले ही रहे, पर आप भी practice कर सकते हो time लगा के. Okay, so please visit the website and purchase the mock test bundle at just 499. So आप like सब तो पढ़ाई करते हैं, पर in the end revision एंड प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेपर में सब क्वेश्चन मिक्स आते हैं और जम्बलिंग होता है, और हम प्रैक्टिस नहीं करते तो आते होते भी हमें मार्क्स हम सिक्योर नहीं कर सकते. ओके, और देयर विल बी लाइक ओनली लिमिटेड सीट्स आर इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट एंड फेलोशिप फॉर फेलोशिप, सो only 30 days are remaining, so please visit, and there is special offer, 50% is off. Okay, so it is very fruitful to getting good rank. So next question देखते हैं अभी. In 4-stroke cycle engine, the camshaft rotates at one half of the crankshaft. Yes, अभी देखो 4-stroke में क्या होता है, one power stroke requires 2 revolution of crankshaft, and in 2-stroke engine at in every power stroke there is one rotation of crankshaft. So here on motion or on movement of camshaft ki movement, like they are connected with gears. Okay, so first option is correct here simply. Then the piston attains its maximum velocity at the top dead center. Okay, so this is piston, this is top dead center, and this is bottom dead center. So अभी इन्होंने क्या क्या है, the piston attains its maximum velocity at top dead center. No, अभी क्या होता है, पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, सो अभी ऑब्वियसली जब मूव कर रहा होगा तब वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि टॉप डेड सेंटर पे उसको स्टॉप होना है और फिर से डायरेक्शन चेंज करके नीचे आना है. So their acceleration is more than velocity. Okay, so यहाँ पे like कम होगी. Okay, so maximum in between TDC to BDC. Okay, then statement 1 तो wrong हो गया है. Statement 2, the piston attains its maximum acceleration. Yes, मैंने अभी बताया क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करना होता है. Okay, due to change of direction in opposite. Okay, so here statement 2 is wrong, so statement 1 is false. Yes, option D is correct. So मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में. देन which of the following is true in case of turbocharger? So turbocharger is driven by exhaust gas turbine. Yes. Turbocharging increases the density of air delivered to the engine. Yes. Turbocharged engine operates with low cylinder temperature. Actually it operates with high. Okay, अभी इसमें एक डाउट है, लाइक क्वेश्चन लाइक एनटीए ने इसको करेक्ट ऑप्शन दिया है एज पर द आंसर की. ओके, सो ए बी तो करेक्ट है हमारे, नो डाउट. अभी डी ऑप्शन देखते हैं. अ टर्बोचार्ज इंजन हैज इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन. नो, इट रिड्यूसेस, डिक्रीज. ये तो रॉन्ग ही है पूरा. अभी ये 3 बचे तो ए बी के दे ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे हम बी कंसिडर कर सकते, पर उन्होंने चेंज या फिर किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा तो चेंज नहीं हुआ होगा. सो इट मे बी हायर सिलेंडर टेम्परेचर होना चाहिए. सो इट मे बी ऑप्शन ए, और इसको हम बी लिख सकते हैं डी की जगह. ओके, सो ए बी तो राइट है. ओके, हियर नेक्स्ट, इफ ट्रांसमिशन एंड इंजन सिस्टम ऑफ अ ट्रैक्टर प्रोड्यूस अ नॉइज ऑफ 80 डेसिबल ईच. अभी देखो यहाँ पे हम आप बोलेंगे दोनों सिस्टम में, तो सीधा हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और डिवाइडेड बाय मतलब एवरेज निकालेंगे और 80 आएगा, पर ये दिस इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि इट इज लॉगरिथमिक. ओके, लॉगरिथमिक टर्म.
सो देयर इज स्पेशल फॉर्मूला, हमें 3 इसमें ऐड करना होगा. ओके, सो हियर 83 इज द करेक्ट ऑप्शन सिंपली. सो नेक्स्ट वन, which of the following is an indicator of efficiency with which the traction device transform the torque acting axle into linear rubber pull? अभी इसका ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ओके, सो इसका ट्रैक्टिव इफिशियंसी आंसर है. और जो नेट ट्रैक्शन इफिशिएंट है उसमें क्या करते हैं हम, जो ड्रॉवर पावर है उसको हम डायनेमिक लोड से डिवाइड करते हैं. ओके, एंड मोशन रेजिस्टेंस रेशियो में क्या करते हैं हम, मोशन रेजिस्टेंस टू द वेट. ओके, सो हियर ट्रैक्टिव इफिशिएंसी इज like formula is ड्रॉबर पावर अपॉन एक्सेल पावर. सो ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स जो क्वेश्चन में दिया है, ट्रांसफॉर्म द टॉर्क acting on axle into linear drawbar pull. Okay, so next question, a closed central wall has land width greater than the port width. Okay, so a closed central wall has land width greater than the port width. Okay, when the spool is in center, yes, because of they blocked ऑल पोर्ट्स. ओके, जब पोर्ट्स ब्लॉक हो गए तभी न्यूट्रल कंडीशन आएगी. सो दिस इज राइट. एन accumulator is hydraulic system is used to supply energy when the demand of the motors and cylinder is greater than the capacity of pump. yes, जब वो पहले स्टोर करके रखेगा एंड जैसे जैसे डिमांड होगी वो उसको सप्लाई करेगा. सो हियर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज correct. Okay, so next question, as per the BIS, Bureau of Indian Standard. Okay, the safe use of thresher. So there are some limitation or standards set by the BIS for the thresher. So minimum length of the feeding chute should be 90 cm. ये तो correct है. And cover up the yes 45. So this is important to avoid accident. Okay, और hand injury. अभी देखो मोस्ट ऑफ जो लेबर होते हैं अनस्किल होते हैं वो लाइक सपोज दिस इज द चूट और यहाँ पे आधा जो है पोर्शन वो कवर होना चाहिए, जो हैंड इसमें जाएगा नहीं. ओके, सो जब हम मटेरियल पास करेंगे इससे. ओके, सो दिस इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए. टोटल 90 होना चाहिए, सॉरी टोटल 90 होना चाहिए एंड दिस विल बी हाफ 45. Okay, so A option is correct. A picker is harvesting system related to potato. For potato, there is potato digger. This is underground tuber crop. Okay. Sorry, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है पर ओके. मेज, मेज के लिए भी हम हाथ से या फिर मेज हार्वेस्ट होता है. यस, फॉर कॉटन पिकर इज यूज्ड टू पिक ओपन balls. Okay, not green balls. Like आपने देखा होगा, suppose this is the plant. So here this is the cotton balls. Okay, इसके बीच में कॉटन रहता है और जो ओपन होता है वही हार्वेस्ट होता है. ओके, जो पैक है वो नहीं करने के हार्वेस्ट. ओके, सो फॉरेज क्रॉप्स के लिए मूवर होता है एंड सीरियल क्रॉप्स के लिए रीपर. Okay, so here option C is correct, cotton. So next question,
नाइप रजिस्टर एंड कटर बार अलाइनमेंट सेम रिपीट हुआ है, रिपीट सेम टॉपिक। इसमें सिर्फ पहले मतलब कुछ ही 15-20 क्वेश्चन पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन पूछा था, अभी अलाइनमेंट भी आ गए। सो अलाइनमेंट में क्या होता है, सपोज दिस इज योर कटर बार एंड दिस इज क्रॉप्स। सो जैसे जैसे आगे मूव करता है, ओके, सो इट विल लाइक exerts प्रेशर ऑन कटर बार। सो ये नीचे झुकता है, ओके। सो जो ये एंगल है वो 90 डिग्री होता है। सो ये अवॉइड करने के लिए उसको थोड़ा पुश किया जाता है। सो 2 डिग्री से फिर एंगल बनता है 88। सो देयर इज 2 डिग्री लीड, ओके। और उसको हम 2 सेंटीमीटर पर मीटर भी कह सकते हैं, ओके। So here it is related to again mover, okay. Same question था। Which of the following is the primary function of street broadcaster? मैंने अभी बताया कुछ क्वेश्चन पहले, street broadcaster is used for the metering and distribute the seed over the given width of land, okay. Then if the diameter d of the, yes, अभी देखो यह क्वेश्चन है RE से, okay, renewable energy engineering, horizontal axis rotor is doubled and wind speed is half, विंड स्पीड हाफ हुआ है एंड डायमीटर डबल हुई है, ओके। द अवेलेबल विंड पावर इज, सो पहले हम विंड पावर का फॉर्मूला निकालेंगे। सो विंड पावर इसका फॉर्मूला 1/2 रो ए वी क्यूब। सो अभी 1/2 रो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π/4 डी स्क्वायर वी क्यूब। यस, अभी हमें कंडीशन क्या दी है, ये सब छोड़ दो, ये तो वैसे भी कट होने वाला है। सो कंडीशन क्या है, PA2 की ये PA1 मान ले, डायमीटर डबल हो रही है एंड ये हाफ हो रहा है। सो 4d स्क्वायर इंटू V/8 V क्यूब बाय 8। सो यहाँ पे हमने 4 बाय, सॉरी कॉमन भी मल्टीप्लीकेशन है ना, सो सिंपल 4 1 जा 4 4 2 जा 8। सो 1/2 d स्क्वायर V क्यूब। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ d स्क्वायर V क्यूब है यानी यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, मतलब हाफ हुआ है। सो रिड्यूस टू हाफ, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा सिंपल, क्योंकि डिवाइड बाय 2 होगा, ओके। अगेन मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट कन्वर्जन प्रोसेस, ब्रिक्वेट, बायोडीजल, बायोगैस प्रोडक्ट। यस, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम RE, 3 क्वेश्चन हो गए। ब्रिक्वेट्स, सो ब्रिक्वेट इज नथिंग बट हम जो ईट देखते हैं, ब्रिक्स देखते हैं, पर ये बायो फॉर्म में होती है। सो ब्रिक्वेट में क्या होता है, जो बायोमास होता है उसको हम कॉम्प्रेस करते हैं और उसको हम डेंसिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसिफिकेशन, ओके। सो इसमें क्या कहते हैं, दिस इज द फिजिकल कन्वर्जन, ओके। सो ए का थर्ड ऑप्शन का है इसमें ये, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो 1 by 1 हम बाकी का भी देखते हैं। बायोडीजल, सो बायोडीजल इज द यूज टू प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर, ओके। बायोडीजल में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ईस्टर फ्रॉम we can say triglyceride, sorry, that is oil, fat, etc. Then C का, सॉरी यार इसका ऐसे, सॉरी मतलब सही था। यस, बायोगैस। अभी बायोगैस सबको मालूम है कि कौन सी प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, दैट इज, इसमें क्या होता है, एनाएरोबिक डाइजेशन। अगेन इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, एसिडोजेनेसिस एंड मिथोजेनेसिस, ओके। सो दिस इज वन एज बायोकेमिकल प्रोसेस एंड लास्ट वन इज प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में भी हाँ हीटिंग होता है, ओके, पार्शियल ऑक्सीडेशन। at 8,000 to 800 to 1,000. So this is both thermal and chemical. Sorry,
Yes, this is thermochemical conversion. So here option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. सिंपल था ये क्वेश्चन. एन इंजिन हैज स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 273 सेंटीमीटर क्यूब. स्वेप्ट वॉल्यूम दिया है. क्लियरेंस वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी दी है. द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर टेकन इन पर स्ट्रोक. अभी इसमें क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट क्या डिनोट करती है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इनटेक, मतलब कितना टेकन की टू द स्वेप्ट वॉल्यूम. सो जस्ट हमें ये इधर लेना है. सो हमारा आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट कितना है 80 इंटू 275. सो ये कैलकुलेशन करते हैं हम एक ही मिनट. 275 इंटू 0.8. यस, 220 सेंटीमीटर क्यूब. कहाँ पे 220. ओके, सो यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुई है. यहाँ पे 220 होना चाहिए. ओके, मतलब आंसर की में सी ऑप्शन दिया है इन्होंने. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. A spark ignition engine is idling at 500 rpm if the average flame speed is 10 meter per second and the flame front must travel 50 mm from the spark. So it 0.05 meter. This is 500 rpm. Okay, all sets. Consumes 85% of the fuel air mixture. How much spark advance is needed if 85% of the fuel consumed before the crankshaft reaches 10 degree after HDC. Okay, सो हमें पूछ निकालना है कि कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है. सो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्टली यहाँ पे यस, ये आरपीएम है तो पहले हमें पर सेकेंड निकालना पड़ेगा. ओके, सो इसके लिए हमने 1 मिनट. उसके पहले हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं. 0.05 को हम लाइक ये सेकेंड ऊपर जाएगा. 1 मिनट. हाँ यस, इसको हम डिवाइड करेंगे स्पीड से. सो हमें टाइम मिलेगा. पहले हमें टाइम तो मालूम होना चाहिए कितना है. सो इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, सो ये कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा अगेन, एक जीरो बढ़ेगा. ओके, ये आया सेकेंड में. और इधर 500 आरपीएम दिया है, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो अगेन 60 अपॉन 500. सो कितना आएगा ये 3/25, 0.1, फिर से 5 बचा. यस, 0.12 सेकेंड. अभी हमें एंगल निकालना है. सो सिंपली हमें 0.05 अपॉन 0.12 इंटू 360, क्योंकि वो पूरा 360 रोटेट होता है. ओके, सो ये कैलकुलेशन करते हैं अभी हम. 0.005 अपॉन 0.12 इंटू 360. सो ये आया हमारा 15 डिग्री यहाँ तक. ओके, क्रैंक एंगल हमारा कितना आया 15 डिग्री. पर उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि 10 डिग्री ऑलरेडी रीच हुआ है उस पे. सो 15 माइनस 10 करना पड़ेगा. सो 5 डिग्री 5 डिग्री आएगा. अभी देखो मैं फिर से बताता हूँ. पहले हमने टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड से. टाइम क्या है हमारा, लाइक डिस्टेंस क्या है, किधर गया, यस 50 mm. सो इसमें मीटर में कन्वर्ट किया है एंड हमारा स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड. एज इट इज लिया, वो आया 0.005 सेकेंड. अभी ये ऑलरेडी स्पार्क इग्निशन इंजन का हमें आरपीएम दिया है, तो उसने हम सेकेंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि दिस इज रिवोल्यूशन पर मिनट है. ओके, रिवोल्यूशन पर मिनट है. सो 60 अपॉन 500 करेगा. सो इट इज 0.12 सेकेंड. देन हमें इधर क्रैंक एंगल निकालना है. सो ये आया 15. जस्ट इन दोनों का हमने डिवाइड किया और
360 क्योंकि वो पूरा साइकिल कवर करता है. ओके, सो उसके बाद ये आया हमारा 15, बट देयर इज कंडीशन, इट ऑलरेडी रीच द 10, लाइक रीचेस 10 डिग्री आफ्टर एचडीसी. सो उतना हमें कट करना पड़ेगा. सो 15 minus 10, 5. So correct option is D, 5 degree. Okay, so next, a pair of straight teeth per gear is transmitting power at 600 rpm and the pinion has 21 standard full depth involved teeth of module 7 mm. So here जो नंबर ऑफ टीथ है वो किससे डिनोट करते हैं हम? Z से. वो है 21 एंड मॉड्यूल कितना है हमारा दिया है 7 mm का. दैट इज 0. कितना होगा? 007 मीटर ना, इतना ही होगा ना. 3 से हाँ, हमें निकालना क्या है? पिच लाइन वेलोसिटी. सो हमें एन भी दिया है आरपीएम 600 आरपीएम. सो पिच लाइन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? पाई डी एन अपॉन कितना होता है? 60. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डायमीटर. सो पिच सर्कल डायमीटर कहते हैं उसको. इसका भी फॉर्मूला है m इंटू जेड. सो m मालूम है हमें 0.007 इंटू जेड 21. सो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं अभी. सो नाउ अभी हमने लाइक आई थिंक हाँ यस बराबर है, वो बाद में करेंगे हम. उसके बाद 0.007 इंटू 21, इट इज 0.147 मीटर. ओके, ये आया. अभी जस्ट हमें वेलोसिटी निकालनी है. सो जस्ट पुट वैल्यू पाई इंटू 0.147 इंटू 600 बाय 60, देन 110. यहाँ पे खत्म हो गया ये. सो 3.142 इंटू 0.147 इंटू 10, 4.62 मीटर पर सेकेंड. यस, ऑप्शन डी. सिंपल था एकदम. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम. एक मिनट सॉरी. आया नंबर ऑफ टीथ Z21 मॉड्यूल 7 mm, उसको कन्वर्जन किया हमने मीटर में. ऑलरेडी आरपीएम दिया है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड पिच सर्कल डायमीटर, दैट इज m इंटू जेड. ये फॉर्मूला याद रखना सब. और आप यूनिट भी लाइक निकाल सकते हैं, मतलब जस्ट 21 टीथ से. ओके, पेयर से आर देयर आर 21 पेयर्स. देन ये आया. उसके बाद जस्ट हमने ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट किया और आंसर आ गया हमारा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a work of W kilonewton is acting on a tire having 160 mm nominal width, 0.16 मीटर अभी लिख लेते. और नॉमिनल विड्थ B से डिनोट होता है मोस्टली, या आप किसी से कर सकते हैं. द इफेक्टिव फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टायर एंड ग्राउंड इंटरेक्शन इज म्यू and the kingpin offset is 10 mm. Okay, so 0.01 मीटर. और किंगपिन ऑफसेट है तो ये डिनोटेड बाय ई होगा. ऑफसेट जनरली इससे डिनोट होता है. एज्यूमिंग द टायर इंप्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑन सर्कल विद डायमीटर इक्वल टू नॉमिनल टायर विड्थ, मतलब सेम है. द किंगपिन टॉर्क ऑफ द टायर इन न्यूटन मीटर. हमें टॉर्क पूछना है. सो देयर इज वन फॉर्मूला डायरेक्ट, म्यू इंटू डब्ल्यू एन इंटू अंडर रूट नॉमिनल विड्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस ऑफसेट का स्क्वायर. ओके, सो जस्ट पुट वैल्यू W इंटू, ये है हमारा किलो न्यूटन में, हमें चाहिए न्यूटन में. सो जस्ट मल्टीप्लाई विथ 1000 इंटू 0.16 स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 0.01 स्क्वायर. ओके, अभी सॉल्व करते हैं. सो 0.16 का स्क्वायर आया 0.0256 ना, और डिवाइडेड बाय 8 भी कर लेते तुरंत. सो ये तो एज इट इज रहेगा हमारा 0.0032 प्लस 0.001.
सो म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू 10⁻³ ये आया 0.0033। सो अभी देखो 10⁻³ रूट के अंदर जाएगा तो 10⁻6 होगा इंटू 2 होगा। ओके, सो म्यू इंटू डब्ल्यू 0.0033 इंटू 10⁻6। सो सो म्यू एज इट इज रहेगा, डब्ल्यू एज इट इज रहेगा 1 2 3 4, यहाँ पे 6 है ना, अगेन 2 0 आर देयर। सो ये ऐसा कुछ दिया है कि ऑप्शन में चेक करते। यस, ये देखो म्यू सिर्फ इधर लिखा है, डब्ल्यू इधर है एंड ये अंडर रूट सभी जगह तो कंप्लीट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ये एक वन ऑफ मतलब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला याद रखना आप। म्यू टी इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू एन इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 8 प्लस सी, वेयर बी डिनोट्स द नॉमिनल वेट एंड ई डिनोट्स द किंग पिन ऑफसेट। ओके, एंड जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a two-wheel drive tractor with a total weight of 20 kilonewton has a static weight. So total weight कितना दिया है ट्रैक्टर का? 20. So total रुको, total weight of tractor 20 kilonewton has the static weight distribution of 25% and 75% on the front and rear wheel. अभी देखो ये भी मैंने पिछले कुछ ईयर्स में बताया था सेशन में कि जो वेट ट्रांसफर होता है वो फ्रॉम फ्रंट टू रेयर व्हील पे होता है, एक्सेल पे। सो यहाँ पे हमें रेयर एक्सेल का वेट लेना पड़ेगा। रेयर एक्सेल वेट वो कितना दिया है? 75% ऑफ ट्रैक्टर वेट, दैट इज 20। सो 75 अपॉन 100 इंटू 20, सो 1515 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ तक तो आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया हमें? द मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स डेवलप इज 10 किलो न्यूटन। सो मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स 10 किलो न्यूटन, और उसके बाद इफ द एक्सटर्नल वेट ऑफ 5 किलो न्यूटन इज एडेड टू द रेयर एक्सेल। ओके, सो अगेन हियर ये तो फर्स्ट हो गया, उसके बाद एडिशनल वेट ऐड किया है। ओके, एडिशनल 5 kg एडेड टू रेयर एक्सेल। सो न्यू रेयर एक्सेल वेट कितना होगा? 15 प्लस 5 20 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद क्या कहा है? द चेंज इन मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स। सो चेंज मतलब ये इनिशियल होगा हमारा ऑब्वियसली। सो हमें वी हैव टू फाइंड न्यू ट्रैक्टिव फोर्स। सो उसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ ये लगेगा फ्रिक्शन। सो म्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन 15 डायरेक्टली करेंगे। क्यों? अभी बताता हूँ। क्योंकि 10 हमें ट्रैक्टिव फोर्स दिया है और 15 रेयर एक्सेल वेट है। सो उसके वजह उसके पास से हमें कोएफिशिएंट मिलेगा। सो इट इज 2/3, that is 0.667, and we have to just multiply it new maximum tractive force mu into, अभी देखो न्यू वेट कितना आया हमारा? न्यू एक्सेल वेट 20, यहाँ पे 15 था इसलिए हमें डिवाइडेड बाय 15 किया, पर अभी हम करेंगे 20 से। सो 0.667 इंटू 20, सो 2/3 पार्ट ना, सो 20 का थर्ड पार्ट लाइक 6.67 प्लस 6. इट इज अराउंड लाइक 13.33 आएगा। ओके, 3.33। सो हमें क्या पूछा है? चेंज इन मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स। ओके, चेंज पूछा है। सो न्यू माइनस इनिशियल, इनिशियल हमारा कितना था? 10 था। सो इट विल बिकम 3.3 किलो न्यूटन। ओके, है क्या? यस, इधर दिया है देखो, यही ऑप्शन है हमारा। ओके, सो ये कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन निकाला हमने। ओके, सिंपल था। ओके, थोड़ा सी पहले हमें सब कैलकुलेशन, पहले क्या क्या गिवन दिया है, कंडीशन क्या क्या, उसके हिसाब से हमने वैल्यू निकाले। जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन निकाला, उससे न्यू
अट्रैक्टिव फोर्स निकाला और दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, लाइक चेंज निकाला हमने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। The bulk temperature reached by the heat absorbing element of the clutch after and before engagement are 200 degrees and 50. Okay, so before and after temperature दिया है, the total mass of heat absorbing element is 10. mass भी दिया है हमें, and q joule of heat is generated in clutch. Required specific heat of heat absorbing element in joule per kg. Okay, specific heat ही निकालनी. So there is simple formula, हमें ये सब जानते हैं, हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है। सो सब हम इधर LHS को ले लेंगे। सो सिंपली Q एज इट इज लिखना है, M 10 दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 200 माइनस 50। सो Q अपॉन 10 इंटू 150। सो इधर लिखता हूँ Q अपॉन 1500। और किसका आंसर है स्पेसिफिक हीट का? यस, बी के सामने, यस दिस इज करेक्ट। सॉल्व भी नहीं करना है, जस्ट पुट वैल्यू एंड आंसर आ जाएगा आपका। ओके, दिस इज द मेन फॉर्मूला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्टेंट सॉइल थ्रस्ट एंड रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच गैंग ऑफ अ सिंगल एक्टिंग डिस्क एरो आर। ओके, सो हमें सॉइल थ्रस्ट दिया है। ओके, दिस इज डिनोटेड बाय टी एंड 600 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। रेडियल फोर्स भी दिया है हमें, ओके, आर। The resultant downward force acting on each gang is 2400 न्यूटन। रिजल्टेंट, इसको हम रिजल्टेंट आर लिखेंगे और इसको स्मॉल आर लिखते हैं क्योंकि रिजल्टेंट आर कैपिटल आर से डिनोट होता है। ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सॉइल क्रस्ट फ्रॉम द गैंग इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डाउनवर्ड फोर्स एंड सेंटर ऑफ गैंग? सो अभी देखो, और फॉर यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ कट, so there is first one condition for uniform depth of cut, the moment of gang axis should be like balance होने चाहिए। okay, so for this the moment of gang axis should be balanced। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो सॉइल थ्रस्ट है, सॉइल थ्रस्ट, ओके, सॉइल थ्रस्ट इनटू जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सॉइल थ्रस्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो किसके साथ बैलेंस करना पड़ेगा हमें? रिजल्टेंट के साथ। रिजल्टेंट फोर्स इनटू क्या निकालना है हमें? यूनिफॉर्म डेप्थ के साथ। सॉरी, हाँ, डिस्टेंस निकालना है यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए। दिस इज डिनोटेड एक्स और डी से डिनोट कीजिए। जस्ट पुट वैल्यू 0.20 is equal to 2400 into x. So x is equal to 1200 into 0.20 upon 2400. So 1 2. So 0.20 upon 2, 0.10 meter. So this is 10 centimeter. Okay, that is nothing but 0.10 meter. Okay, so B option is correct. सिंपल था ये, मैंने कैसे मतलब बताया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कुछ कुछ न्यूमेरिकल। ओके, सो मिक्स क्वेश्चन पेपर था। एन इंक्लाइंड ब्लेड टिलेज टूल of 25 centimeter and 10 centimeter long is operating at 25 centimeter depth in cohesionless soil with density of 1.25 gram per centimeter cube. Okay, yes. तो उसके बाद the angle of internal friction is 39 degree. The normal load on the tool and coefficient of soil metal friction are 1000 Newton and 0.3 respectively. The soil cutting resistance per unit length of the cutting edge is 25 Newton per mm. If the tool lift angle is 330 degree, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है। So the specific draft will be, अभी देखो इसमें एक मिस्टेक है क्योंकि जो स्पेसिफिक ड्राफ्ट होता है वो हमेशा लाइक किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या मतलब इसका यूनिट ये नहीं। ओके, सो ये हमेशा ड्राफ्ट है। ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट, लाइक मतलब ये इसका यूनिट अलग रहता है। ओके, सो और ये दिया है सब ड्राफ्ट की यूनिट सब।
सो ये इसका आंसर हमने मतलब ड्राफ्ट निकाल सकते हैं, ओके, बट स्पेसिफिक ड्राफ्ट मतलब ये क्वेश्चन है totally wrong है, okay, but there is some one formula like sin alpha plus mu cos alpha, okay, this is one formula to solve it. तो वैसे हमने सॉल्व किया तो मतलब कैसे होगा मैं बता, मतलब मैंने किया था, पर स्पेसिफिक ड्राफ्ट फिर भी हम निकालेंगे तो भी यूनिट नहीं दिया है, ओके, सो देर इज नो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, मैंने किया था एक कैलकुलेशन। यस, पहले हम निकालेंगे फोर्स रिक्वायर्ड टू कट द सॉइल, ओके, अलोंग द एजेस। सो फर्स्ट स्टेप है फोर्स रिक्वायर्ड टू कट द सॉइल अलोंग एजेस। सो ये कैसे निकालेंगे हम? सो पहले हम निकालेंगे 25, ऑलरेडी हमें ये दिया है डेप्थ, ओके, इनटू करेंगे हम लाइक 1 मिनट, यस 250 से। अभी 250 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे 250 सॉरी 25 × 10 ऑलरेडी दिया है, ओके। सो ये कितना आएगा, करो तो कैलकुलेशन। 25 25 625, यस, ये आया हमारा। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, देयर इज स्पेशल फॉर्मूला फॉर ड्राफ्ट फोर्स ड्यू टू सॉइल टूल इंटरेक्शन। मैंने जैसे बताया, मैंने न्यू पेज लेते हैं, ड्राफ्ट, ओके, इज इक्वल टू n sin अल्फा, ओके, प्लस म्यू cos अल्फा। सो हियर जस्ट वी हैव टू पुट वैल्यू, ओके। यहाँ पे n क्या दिया है, 1000, ओके, नॉर्मल लोड 1000 साइन, एंगल कितना दिया है अभी देखो 30 डिग्री, ओके, यहाँ पे दिया है हमें लिफ्ट एंगल, प्लस म्यू, म्यू कितना दिया है हमें 0.3, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल मेटल फ्रिक्शन, ओके, इनटू यहाँ पे अभी अगेन मतलब म्यू इंटू एन होगा, ओके, सो अगेन मल्टीप्लाई विद 1000 cos 30। सो ये हम सॉल्व करते हैं, जस्ट पुट साइन 30 कितना होता है 0.5, दैट इज 1/2 लिखते हैं हम, या फिर 0.5 लिखते हैं, कैलकुलेटर से ही करेंगे, प्लस इन सब का ये कितना होगा 300 इंटू cos 30, 1 मिनट, कितना, हाँ, cos 30 0.866, सो ये आया 50 प्लस 300 इंटू 0.866, 259.8, सॉरी ये 1000 है हर जगह, सो ये 500, 259.8, ओके। अभी जस्ट एड इट 759.8, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 760 न्यूटन। सो ये हमारा ड्राफ्ट आया है, लेकिन नॉट अ स्पेसिफिक ड्राफ्ट। इसको हम फिर से एरिया से डिवाइड करेंगे और किलो न्यूटन में निकालेंगे, सो ये स्पेसिफिक ड्राफ्ट आएगा। सो आंसर के में भी इसका सी ऑप्शन दिया है, मतलब मे भी वो पूछना चाहते थे ड्राफ्ट, ओके, सो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ थ्रेशर 100 न्यूटन मीटर इज रिकॉर्डेड एट 600 आरपीएम, ओके, मतलब थ्रेशिंग का टेस्टिंग कर रहे थे और उसमें उन्होंने टॉर्क निकाला है 100 न्यूटन मीटर, दिस इज टॉर्क, न्यूटन मीटर यूनिट याद होने चाहिए आपको, एट 600 आरपीएम at the main shaft of threshing cylinder. The diameter of the threshing cylinder is 0.14, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं अभी। The cylinder is operated by V pulley and unit mass of V belt is, ये मतलब मास दिया है पर मीटर के हिसाब से। What will be the maximum tension in the V belt? So there is again like centrifugal tension करके एक टर्म है, centrifugal tension. So this is denoted by TC and इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम बेल्ट टेंशन बाय 3,
सो हमें ये निकालना है, सो 3 इंटू टी सी करना पड़ेगा, बट द टी सी का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर। एम तो दिया है हमें बट वी नहीं है, तो वी का फॉर्मूला हमें मालूम है अगेन, पाई डी एन बाय 60। सो जस्ट पाई इंटू डी भी दिया है डायमीटर 0.140 इंटू एन भी दिया है 600 बाय 60, अगेन पाई इंटू 0.140 इंटू 10, ओके सॉलिड 3.142 into 0.140 into 10, 4.4, okay, around meter per second velocity है ना, and just put here m कितना है हमारा 0. नहीं सॉरी 1 ही है, 4.4 का स्क्वायर आता है 19.36 हमारा आया टीसी, और हमें निकालना है टी, सो मल्टीप्लाई विथ 3, so 19 3s are 57 and this is like 108, like 58.08, so yes 58 is the correct option, okay simple था एकदम. First we have to find velocity and just put to find out centrifugal tension, and the maximum belt tension is the 3 times the centrifugal tension, okay, so here हमने निकाला and this is in Newton. So next question देखते हैं, अभी भी 2 क्वेश्चन बचे. The output capacity and cleaning efficiency again from FMPE, and topic is harvesting and threshing. Of wheat thresher at an optimal operating condition at 600 kg, ये output capacity है, and this is cleaning efficiency. The grain straw ratio is T:1. This is important one. If the grain recovery at main grain outlet, yes, grain recovery 100% है, okay. The throughput capacity, so हमें पहले निकालना पड़ेगा grain output. So grain output के लिए there is formula, हमें जो थ्रूपुट कैपेसिटी सॉरी आउटपुट कैपेसिटी उससे क्लीनिंग एफिशिएंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेन आउटपुट को, ओके सो ये कितना आएगा, करो तो कैलकुलेट, अराउंड थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि हम 0.99 से डिवाइड कर रहे हैं ना, $606.06 kg, ओके पर आवर, ओके. अभी हमें क्या निकालना है, थ्रोपुट कैपेसिटी. सो थ्रोपुट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल रेट ऑफ ग्रेन प्लस स्ट्रॉ. अभी देखो हमें ग्रेन का मालूम है और रेशो भी मालूम है, ओके सो जस्ट ग्रेन का आया 606.06, सो ग्रेन का डबल है तो स्ट्रॉ का उसके हाफ होगा, सो 606.06 अपॉन 2, सो 606 इतना ही लिखते हैं हम, ये 06 छोड़ देते हैं, 303, सो 909 kg पर आवर. ये क्या ऑप्शन है ऐसा कुछ, यस फर्स्ट ही ऑप्शन है, ओके सिंपल था एकदम. पहले ग्रेन आउटपुट निकाला, थ्रूपुट कैपेसिटी फ्रॉम रेशियो ग्रेन एंड स्ट्रॉ का एडिशन किया एंड हमारा फीड रेट आ गए, ओके थ्रूपुट कैपेसिटी आ गई. लास्ट क्वेश्चन, द सॉइल फोर्सेस acting upon a moldboard flow bottom resulting from the operation of cutting, pulverizing, lifting, inverting the furrow slices are 2.2 kilonewton. So अभी देखो here वन बाय वन देखते हैं हम. सो 2.2 ये जो है हम इसको लॉन्जिट्यूडनल कहेंगे, ओके फोर्स, ओके दिस इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स 2.2 किलो न्यूटन. देन जो वन है उसको हम कहेंगे लाइक ट्रांसवर्स, ओके
ओके, उसके बाद हमें दिया है पॉइंटेड, सो पॉइंटेड को हम अभी रखते हैं, यस सॉरी, इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो इसका जरूरत नहीं लगेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल मेटल फ्रिक्शन, यस कोएफिशिएंट दिया है हमें 0.3, किधर गया? What will be the estimated draft neglecting the effect of the weight? So we have to find draft. So first हमें frictional resistance find करना पड़ेगा, okay? So first step is frictional resistance. एंड जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू ट्रांसवर्स फोर्स, ओके? सो जस्ट 0.3 इंटू 1 ही है ना, सो ये भी 0.3 किलो न्यूटन ही आएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी। एंड ड्राफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? कटिंग एंड पल्वराइजिंग, ओके? उन्होंने क्या पूछा है? निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंट एंड वर्टिकल रिएक्शन। सो मैंने अभी बताया वर्टिकल डायरेक्शन ये तो गया, ओके? अभी हमें और इम्प्लीमेंट का भी नहीं लेना है, सो जस्ट वी हैव टू फाइंड कटिंग एंड पल्वराइजिंग का, ओके? सो 2.2 लॉन्जिट्यूडनल, जगह का इधर ही लिखते, पेन चेंज करते, ओके? ड्राफ्ट इज इक्वल टू longitudinal plus frictional. So here 2.2 plus 0.3. So it becomes 2.5 kilonewton. Okay, 2.5 kilonewton आंसर है क्या? Yes, 2.5 kilonewton is मतलब ही 2500 न्यूटन। So D option is correct. Okay, ये भी सिंपल था। So next question. Okay, so I think हो गए थे ना हमारे? Yes. This way we covered all the questions of part 1 of 2024. So in the end again we prepared special mock test. आपको सब मैंने बताई है। It contains 30 sets of mock test with complete, that is full length. Okay, subject wise, topic wise, 3 attempts. Okay, लाइक आप 3 बार एक ही एग्जाम दे सकते हैं, उसके आपके मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सिली मिस्टेक कम होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हम दे ही रहे, बट आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन पैटर्न है वो अकॉर्डिंग टू पेपर है, मतलब काइसर पेपर, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ना, एसोसिएशन एंड रीजन, स्टेटमेंट टाइप, मैच द फॉलोइंग, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू एक्सेट्रा। ओके, सो प्लीज विजिट एग्री एडिक्ट वेबसाइट, ओके? And purchase the mock test bundle at just 499. Okay, only 30 days are remaining, and in the end only revision and practice matters. Okay, rank मतलब आपके अच्छे आने चाहिए। There is very limited seats for fellowship and admission in premium institute like IRI, PAU, CI भोपाल, CFTRI. Okay, मतलब अभी टाइम है, अभी भी आप आपका स्कोर बढ़ा सकते हो। ओके, देयर इज वेरी कॉन्फिडेंट लाइक कॉम्पिटिशन, मतलब मेरा और एक स्टूडेंट है, उनका रैंक सेम आ गया है, मतलब मार्क्स सेम आ गए थे। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड, आप अच्छे से तैयारी करना। ओके, सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट, लाइक हम मतलब मैं बहुत अच्छे से मतलब ऑप्शन एक आंसर ढूंढ रहा हूँ। देर इज लाइक कुछ कुछ मिस्टेक है पेपर में, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आंसर की में, या फिर कौन से बुक से एग्जैक्टली उन्होंने वो पार्ट या क्या कंसेप्ट पूछना चाहते थे, वो थोड़ा वेरी हो रहा है, पर बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर करके आ रहे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज लाइक सपोर्ट कीजिए। ओके, और आपके स्टूडेंट लाइक कॉलेज के स्टूडेंट हो के, फ्रेंड्स हो के, उनको शेयर कीजिए। थैंक यू, लेट मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।